Welcome to all of you. My name is Ashish Garg, and today we are going to see the top 10 questions that is asked from the SOM topic. That is our strength of material. In, in civil engineering, we read almost 14 subjects from exam point of view, but what is the major defect in this strategy is we read first concepts. We don't go through questions and we read concepts again and again till we know that we have to actually answer the questions in the exam. Only reading concepts did not give you success in the exam. So the main aim here is to make yourself acquainted with the type of questions asked in the different examination. I have seen different questions from different topics and different type of varieties of questions that is usually asked in the examination. So based on my experience, I will tell you the top 10 questions that usually been asked from particular topic. From today, we are going to start with SOM. But the main aim here is to make you acquaint yourself with that question. And if you are a fresher, if you are still in the college, then you don't need to worry. Try to see the questions and see what are the solutions going to have, what are the different solutions leading to that questions. So the reason or the so that you understand the main basic concept behind these topics. And even if you are cleared an exam and still you want to go for IES, GATE, State PSC exam, then you must watch this video because I am giving you some key insights of those exams which are regularly asking questions from this particular 10 topics. I am giving this program a code name Avengers 10. It has nothing to related with your Avengers movie because these are not like your heroes, but these are as powerful questions as Avengers you think. So starting with today's topic, SOM topic, and today I am going to ask you question from our first chapter, properties of material and stresses. But today there I have asked you 10 questions from each topic. So we have total of 12 chapter in strength of material, and we are going to see 10 questions from each topic for each chapter, and we will try to summarize the type of question asked in the exam. We actually try to here make a pattern. हम यहाँ पर एक पैटर्न जनरेट करेंगे जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे और एक एल्गोरिथम की तरह, एक कोड की तरह उसे जब हम पेपर में जाएंगे यूज करेंगे. तो आपको भी ये कोड बनाने चाहिए और इसका आपको बहुत हेल्प होगी. तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से. सोम के हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक से हम शुरू करते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन from today, our first question is, what is the difference between basic question, very basic, isotropic and homogeneous material. मैं आपको यहाँ पर कोई सोम नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आपने पढ़ा ही होगा सोम आपने पढ़ी होगी. तो मैं आपको वहां से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं. मतलब आपको क्वेश्चंस ये अराउंड 2 to 3 टाइम्स रेगुलरली पूछे गए हैं. जो ये 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आपके ये अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन बन जाएंगे. तो इसलिए आपको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए. आइसोट्रोपिक किसे बोलते हो आप? आइसोट्रोपिक होता है हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. समझाने के लिए, यदि ये आप हो तो आपकी एक डायरेक्शन ये है, एक ये और एक ये. तो इन डायरेक्शन में यदि आपकी सेम प्रॉपर्टीज है, आप जहां खड़े होके आप डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ देखते हो,
if you have the same properties in different direction, if you have same properties in different direction, then it is called as isotropic. And the homogeneous is that if you are standing at a place, if you are this, and if you are standing at a place and you are seeing in all the directions, then you will have same properties in every direction. You will get same properties in every direction. Like this, if this is 1, then you will see continuously 1 in every direction. Here you will see 1 in particular direction, 2 in different direction. तो ये एक समझाने का मेथड है जिससे हम आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपसे यूजुअली नहीं पूछा जाएगा, या फिर आपको 2 बार पूछा गया, जैसे अभी ये जैसे आईएएस में पूछा गया है और गेट में 1 बार पूछा गया है। तो अब बात करते हैं पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिनोट करते हैं म्यू से। आप लोग बताइए, यदि म्यू 0 है और म्यू 0.5 है तो ये क्या डिनोट करता है? म्यू 0 है और 0.5 है तो क्या डिनोट करता है? म्यू 0 है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ म्यू आपको पता होगा लेटरल स्ट्रेन विल बी 0। लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास 0 होगी, जिसका मतलब क्या होगा कि यदि आप किसी डायरेक्शन में आप स्ट्रेस लगाते हो या स्ट्रेन लगाते हो तो आपके दूसरे डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं होगा। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपका रहेगा लेकिन लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू वहां पर आपको 0 मिलेगी। ये एग्जांपल है आपका कॉर्क का। एग्जांपल है कॉर्क का। बेसिकली जब आपने केमिस्ट्री लैब जाते थे तो आपने वहां पर देखा है जार जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है उसके ऊपर कॉर्क लगी होती है जिससे वो बंद होता है। तो उस कॉर्क को यदि आप इंसर्ट करते हो या रिमूव करते हो, जब आप इंसर्ट करते हो तो आप एयर प्रेशर को अंदर प्रेस करते हो, जिसके कारण आपकी ग्लास एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि म्यू 0 है तो उसका ग्लास एक्सपेंड नहीं होता है। तो ये रीजन पूछ लिया जाता है, व्हाई वी यूज कॉर्क इन द ग्लासेस इन द केमिस्ट्री लैब, व्हाई वी यूज कॉर्क इन द ग्लासेस ऑफ द केमिस्ट्री लैब। यदि आपका म्यू 0.5 है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आप फेमिलियर होगे, k = 3 × 1 - 2 म्यू। वी हैव दिस मेनली 2 फॉर्मूले, one of k and other of g, वो भी आपको पता होगा, g = E/2 × 1 + म्यू। तो इन 2 फॉर्मूलों से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बोलूँ तो अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द लास्ट 28 ईयर्स। यदि ESC 28 ईयर्स की आप बात करोगे तो उसमें आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछा गया है। k की वैल्यू गिवन रहेगी, आपको e की गिवन रहेगी, म्यू पूछ लेंगे। आपको कोई भी 2 पैरामीटर गिवन रहेंगे, g, k, e और म्यू में से ये 4 पैरामीटर है हमारे पास, इसमें से कोई 2 पैरामीटर गिवन रहेंगे, आपको 3rd पैरामीटर पूछ सकता है। तो यदि म्यू 0.5 है आपका तो ये डिनोट करता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू 0। या फिर यहां से देख लीजिए आप, ये 0.5 हुआ तो k आएगा आपके पास इनफाइनाइट। k की वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। और k क्या होता है आपका? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये यदि आपका इनफाइनाइट आता है तो इसका मतलब है सोइल जो आपका सैंपल है वो इनकम्प्रेसिबल है, दैट इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये है हमारे पास म्यू 0.5 का मेन जो आंसर होता है। अब इसी में म्यू में ही आपसे पूछ लेते हैं, जैसे आपकी यदि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0.2 से ज्यादा होती है तो आपको डक्टाइल बिहेवियर शो करता है। ये एक आप इसको लिमिट भी समझ सकते हो या जनरली बोल देते हैं 0.2 से या 0.25 से यदि वैल्यू आपकी ज्यादा है, 0.25 से वैल्यू यदि ज्यादा है तो आपको कैसा मिलेगा बिहेवियर? डक्टाइल। जैसे आपका कंक्रीट ब्रिटल नेचर की होती है तो उसकी वैल्यू म्यू की 0.25 से कम होगी, आप ऐसे समझ सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम जनरलाइज कर रहे हैं कि म्यू की वैल्यू से हम डक्टिलिटी का इफेक्ट देख सकते हैं।
डक्टिलिटी का इफेक्ट देख सकते हैं, या फिर डायलेशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, अपने थर्ड क्वेश्चन की। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से स्टील के, हम वो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चंस करवाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जब पेपर में जाओ तो आप याद रखो कि मैं जो कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ, या फिर आप पेपर में नहीं, आप जब जैसे कोई टॉपिक पढ़ो तो आप याद रखो कि मैं ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो हमारा मोटिव वो है यहाँ पे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील से इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कार्बन कंटेंट इज मोर, आप बताना, पहले गैस करना, इफ कार्बन कंटेंट इज मोर तो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर क्या डिफरेंस आएगा, डक्टिलिटी पर क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ पे यदि मैं लिख दूं अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, डक्टिलिटी के ऊपर आपका क्या इफेक्ट आएगा, डक्टिलिटी के ऊपर आपका क्या इफेक्ट आएगा, या फिर आपका चेंज इन लेंथ, या फिर डिफ्लेक्शन में क्या लेंथ, डिफ्लेक्शन बोल लीजिए इसको, डिफ्लेक्शन में क्या इफेक्ट आएगा, डिफ्लेक्शन में आपका क्या इफेक्ट आएगा। मतलब ये बताना आपको वैल्यू डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी। तो यदि आपका कार्बन कंटेंट इंक्रीज करता है तो आपको यदि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टील का पता हो, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पता हो तो वो कुछ ऐसा होता है। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये वैल्यू मैं लिख नहीं रहा, ये वैल्यू मैं लिख नहीं रहा हूं अभी। ये होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस, ये होता है हमारा फ्रैक्चर स्ट्रेस जिसे बोल सकते हो आप, ये होता है हमारा यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन कंटेंट बढ़ा है तो कार्बन कंटेंट बढ़ने से जो आपकी कर्व होगी, वो कुछ ऐसी हो जाती है। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, आपको पता चल रहा है कि आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो इंक्रीज कर जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीज। डक्टिलिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, डक्टिलिटी होता है, ये होता है हमारा प्लास्टिक रीजन, दिस इज अवर प्लास्टिक रीजन। तो डक्टिलिटी यदि आप माइल्ड स्टील की बात करें तो यदि आप इस स्टेज के ऊपर हैं, मतलब कि आपके पास स्ट्रेस इतना और स्ट्रेन इतना है, तो आप देख सकते हो आपके पास स्टिल इतनी डक्टिलिटी अवेलेबल है, आपके पास इतनी डक्टिलिटी अवेलेबल रहेगी। लेकिन इस केस में आपके पास डक्टिलिटी अवेलेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, कार्बन कंटेंट जितना बढ़ाओगे आप वो उतना ही ब्रिटल नेचर का आप शो करेगा, डक्टिलिटी से दूर जाने लगेगा, वो ब्रिटल नेचर का आपको शो करेगा, तो डक्टिलिटी कम होगी, तो ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और डिफ्लेक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि डक्टिलिटी भी रिड्यूस हो रही है तो आपका परमिसिबल डिफ्लेक्शन यदि बोले तो वो डिक्रीज हो जाएगा, परमिसिबल डिफ्लेक्शन आपकी डिक्रीज हो जाएगी, परमिसिबल डिफ्लेक्शन आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसी से क्वेश्चन है एक, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, इस डायग्राम से बताना है आपको। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, मैं नहीं बताऊंगा ये टॉपिक आपको। इफ यू डोंट नो कमेंट मी, आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन। और यहीं से बताओ मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, इसी डायग्राम से मॉडुलस ऑफ टफनेस कमेंट में रिप्लाई करो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और इसमें एक पॉइंट हो रहा है, वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यदि आप HYST बार यूज करते हो, हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म बार, दैट इज अवर Fe415 ग्रेड, तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग आप अपना यील्ड स्ट्रेस निकालते हो।
you calculate your yield stress corresponding to 0.2% of proof stress. मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों, वाई, ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है BARC का, तो आप सोचना ऐसा क्यों है, नहीं पता चले तो मेरे को बताना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। अब मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू, अगेन स्ट्रेस डायग्राम से ही था वो आपका। यदि मैं बताऊं फोर्थ क्वेश्चन आपका, जैसे ये हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम था स्टील का, तो आपसे पूछा गया है यदि स्टील की एक रोड है, दिस इज अ स्टील रोड, this is our steel rod and we provide a torsion in the steel, torsion provide किया हमने स्टील के अंदर, then you will see a fracture, particular you will see fracture in this rod. What kind of fracture you will see if this is steel rod? I am asking you in steel rod, that is mild steel rod, तो आपको फ्रैक्चर इसके अंदर कैसा मिलेगा। यदि मैं इसको ऐसे दिखा दूं तो आपको फ्रैक्चर वैसे ऐसा मिलेगा, ये 90 डिग्री फ्रैक्चर मिलेगा आपको, 90 डिग्री फ्रैक्चर। ये होता किसके रीजन से है, नॉर्मल स्ट्रेस के कारण। आई होप यू नो नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस 3 टाइप्स के होते हैं वैसे, यदि मैं जनरली जल्दी से बता दूं। नॉर्मल स्ट्रेस आपका जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस, एक होता है आपके पास बियरिंग स्ट्रेस, और एक होता है आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस। ये आपके पास 3 स्ट्रेस होते हैं। कुछ नहीं, रिवीजन करो, पढ़ो बुक से, यदि नहीं पता चले तो मुझे बताओ। तो यदि आप माइल्ड स्टील को टोर्शन में लगा अप्लाई करते हो तो फ्रैक्चर आपको 90 डिग्री पर मिलेगा। लेकिन यदि अब ये हमारे पास है डक्टाइल मटेरियल, यदि अब इंस्टेड ऑफ माइल्ड स्टील वी यूज कास्ट आयरन यूज करोगे आप, तो उसके अंदर जो फ्रैक्चर मिलेगा आपको, उसके अंदर जो फ्रैक्चर मिलेगा वो मिलेगा 45 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर आपको फ्रैक्चर मिलेगा टू द नॉर्मल ऑफ द टू द एक्सिस ऑफ द रोड। ऐसा क्यों? कास्ट आयरन आपका होता है ब्रिटल नेचर का, और इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो बिकॉज कास्ट आयरन इज वीक इन टेंशन। ये जो आपका होता है ये वीक होता है टेंशन के अंदर, और टेंशन लगती है 45 डिग्री के ऊपर। टेंशन जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यदि आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पता है आपको, तो वहां से आप यदि निकालोगे तो वो 45 डिग्री के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इस कारण से आपका कास्ट आयरन 45 डिग्री पे फेल होता है। इसी को बोलते हैं हेलियोकॉइडल फेलियर। कुछ भी बोल लो इसको, हेलियोकॉइडल फेलियर बोल लो, जो प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक लगे वो बोल लो, हेलियोकॉइडल फेलियर। तो बेसिकली ये था हमारा कास्ट आयरन स्पेसिमेन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम इससे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज अवर 5th क्वेश्चन। अब वो भी कुछ इसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट, मतलब कि हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से रिलेटेड। तो वो क्या है, हमसे पूछा गया है ब्रिटल फ्रैक्चर्स, what are the conditions for brittle fracture? Conditions for brittle fracture, आप बताइए पहले क्या है कंडीशंस। हमारे पास यदि हम बात करें एमसीक्यू में, हमारे पास रिपीटेडली ये क्वेश्चन देखा गया है, मतलब बहुत बार, मैं यदि बताऊं अपने अभी एक्सपीरियंस से, ये अराउंड 3 to 4 टाइम पूछा गया है अराउंड इन द 10 years फ्रॉम इन द ESC ओनली। तो आपका ये रीजन क्या है जिसके कारण ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। आपको पता है यदि डक्टाइल कोई मटेरियल है, यदि उसको टेम्परेचर आप इंक्रीज कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे, जब आप उस डक्टाइल मटेरियल का बहुत कम टेम्परेचर कर देते हो तो वो हो सकता है ब्रिटल बन जाए, सब 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वो ब्रिटल बन जाता है। और सिमिलरली किसी
ब्रिटल मटेरियल को आप यदि उसका टेम्परेचर राइज करोगे तो उससे आपको डक्टाइल मटेरियल ऑब्टेन हो सकता है। तो दोनों ही केस में ब्रिटल डक्टाइल हो सकता है और डक्टाइल ब्रिटल हो सकता है, डिपेंड करेगा एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर या फिर उसके सरफेस के ऊपर, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो यदि बात करूं तो ब्रिटल फ्रैक्चर के मेनली 2 रीजंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं। वन इज द सब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सब जीरो टेम्परेचर आप लिख लीजिए, और सेकंड जो है प्रेजेंस ऑफ नोचेस इन मटेरियल। नोचेस क्या होते हैं? नोच इसे बोलते हो आप, यदि जैसे ये कोई मटेरियल है तो उसके अंदर नोच ऐसे आपको नेल की तरह दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा, उसको नोच बोलते हैं। यदि ये नोच प्रेजेंट है तो आपके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको प्रेजेंस ऑफ नोच के कारण और ड्यू टू सब 0 डिग्री टेम्परेचर आपको ब्रिटल फ्रैक्चर मिलता है। कुछ भी ना समझ में आए कमेंट करो। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे हमारे 6th क्वेश्चन की, जो आपका रिलेटेड होगा डिफ्लेक्शन से, या फिर डिफ्लेक्शन से होगा मेनली रिलेटेड डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड्स, वो आपका वहां से रिलेटेड होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करूंगा, फ्रेंडली टॉपिक है, पढ़ लो, क्योंकि पेपर में कभी कभी एक बार पूछा गया है, 5 साल में एक बार, तो कुछ फ्रेंडली टॉपिक है वो पढ़ लो। आप पढ़ो क्रीप की डेफिनेशन, आप पढ़ो इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, व्हाट इज इंड्योरेंस लिमिट से भी क्वेश्चन काफी पूछा गया है। ये आपका पैरामीटर होता है, इंड्योरेंस लिमिट आपका पैरामीटर किस में होता है? ये होता है आपका मेनली इंड्योरेंस लिमिट आपको देखने को मिलेगा फटीग में, ये होता है आपका फटीग क्या होता है बताऊंगा नहीं, ट्राई करो पढ़ो। तो इंड्योरेंस लिमिट ये टॉपिक पढ़ो, और इलास्टिसिटी पढ़ो। एक इलास्टिसिटी से सिंपल क्वेश्चन, यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रीजन के अंदर है, दैट मींस इट फॉलोज हुक्स लॉ। तो उस रीजन के अंदर है, तो यदि आप स्ट्रेस जैसे ही रिमूव करते हो तो आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या आपकी जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो तुरंत रिकवर हो जाती है, मतलब कि जैसे आपका ये मटेरियल था, आपने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया तो उसके कारण कुछ डिफ्लेक्शन इसके अंदर आए, मान लिया हमने डेल्टा एल, यदि इसकी लेंथ एल थी हमारे पास, इसकी लेंथ एल थी, ये पी लोड था जिसके कारण डिफ्लेक्शन आया डेल्टा एल। तो आपको बताना है यदि ये इस रीजन के अंदर है तो ये डिफ्लेक्शन तुरंत खत्म हो जाएगी, मतलब इट विल इंस्टेंटेनियसली removed once load is removed, और या आपकी ये मतलब कुछ टाइम के बाद आपकी ये रिमूव होगी आफ्टर अ सर्टेन इंस्टेंट deflection remove। पेपर में क्वेश्चन था उसके अलग ऑप्शंस थे, मतलब ऐसे ही ऑप्शन थे। मैं आपको 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, सोचना बताना क्या आएगा इसका। तो इलास्टिसिटी से आपको पढ़ लेना थोड़ा, एक टर्म होती है टेनिसिटी, डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस क्या है, और कुछ काम का नहीं है वो। तो ये कुछ टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। अब बात करते हैं हम 6th क्वेश्चन के ऊपर। एवेंजर्स प्रोग्राम के अंदर ये 6th क्वेश्चन हमारा। 6th क्वेश्चन क्या है? ये है आपका डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड। तो
आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपका एक मटेरियल है, ये आपका एक मटेरियल है जिसमें आपको एक सर्कुलर सेक्शन दिया गया है, सर्कुलर सिलेंडर ऑफ वेरिंग डायमीटर, सर्कुलर सेक्शन ऑफ वेरिंग डायमीटर, and one side its diameter is say 2d and other side its diameter is d, and you applied a load P and a load P is applied at the free end, इसको कैंटिलीवर भी बोलते हैं हम। लोड P is applied at the free end, तो आपको बताना क्या है, डिफ्लेक्शन बताना है, आपको बताना है डिफ्लेक्शन की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इफ वी टेक द एवरेज डायमीटर, if average diameter is taken, if average dia is taken, then error introduced due to calculation of deflection, then error introduced in deflection, आपको एक ये क्वेश्चन बताना है, ट्राई करना भी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, जैसे थर्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है, हम देखेंगे उसमें डिफ्लेक्शन में ही, तो आप इन दो क्वेश्चंस को ट्राई करो। मैं बता देता हूं, इसका जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आएगा वो आता है PL/A। हर किसी का डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ड्यू टू एक्सियल लोड वो होता है PL/A। वो कहां से आता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से, ये यहां से आता है। तो आपको क्या निकालना है, यहां से डिफ्लेक्शन निकालना है, और यहीं से ही इससे आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। आपको P पता है, आप एक X सेक्शन के ऊपर जाके ये आप सर्टेन डायमीटर D होगा आपका ये, और ये आपका टोटल लेंथ L गिवन है। तो आप यहाँ से, आपके पास वेरिएबल क्या है, A वेरिएबल है, L वेरिएबल है, बाकी P कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है। तो आप इंटीग्रेशन से या फिर सिंपली कैलकुलेशन कीजिए, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। यदि एवरेज डायमीटर लोगे यहाँ पर d1 प्लस, इस केस में क्योंकि 2d प्लस d है, यदि इसका एवरेज लेके वैल्यू कैलकुलेट करोगे डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन की, तो आपको एरर मिलेगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वो एरर आएगा आपके पास 10% का, अराउंड 10% का एरर आपको मिलेगा। तो यहाँ से हमारा ये 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब जो इसमें सेकंड पार्ट है वो ये है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पार्ट से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपको गिवन रहेगा एक सस्पेंडेड रोड है, तो उस सस्पेंडेड रोड के सेल्फ वेट के कारण, ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। आपको गिवन होगी लेंथ, आपको गिवन होगा इसका यूनिट वेट, दैट इज लैम्डा, दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इज गिवन टू यू, लैम्डा इज गिवन टू यू, L is given to you, and modulus of elasticity is given to you. In these terms you have to find डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल है, ये फॉर्मूला यूज करो, आप देखो कैसे निकालोगे, P को लैम्डा में कैसे कन्वर्ट करोगे, वहां से आप निकाल लीजिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू। आपको वैसे मैं बता देता हूँ इसका आंसर, डिफ्लेक्शन जो आएगा यहाँ पे वो हाफ ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा जो यदि इसके ऊपर P लोड लग रहा होता तो। मतलब क्या हुआ इस बात का, यदि इफ वी हैव द P लोड एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड, देन द डिफ्लेक्शन विल बी, वी नो, PL/AE। सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे निकाला, डिफ्लेक्शन हमारे पास PL/AE आएगा, लेकिन इस केस में जो डिफ्लेक्शन आएगा PL/2AE आएगा। और PL/2AE यदि आप लैम्डा की क्रम में लिखोगे वो आएगा लैम्डा L स्क्वायर बाई 2E, तो ये क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आप कोण का भी निकालो, यदि मैं गेट के क्वेश्चन की बात करूं, गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ यू हैव दिस कोण and you have this rod at the bottom and P load is acting at the bottom, this diameter is D and this is 2D,
find deflection. This length is L and this length is also L given to us and modulus of elasticity is given to us. हमें पूछा गया है डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो आप ये ट्राई करें, यदि नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर की बुक से, आप गेट की प्रीवियस ईयर बुक से बिल्कुल इजीली देख सकते हो, वरना मैं बता भी देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा आपके पास, इसका जो डिफ्लेक्शन है आपके पास PL/A डायरेक्टली, और इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि ऐसे ही है तो इसका डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा PL/π/4 D1 टाइम्स D2 इंटू E। एरिया जो इफेक्टिव बनता है इसका यहाँ पे π/4 D1 टाइम्स D2, ये आपका इफेक्टिव एरिया बन जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस जो एवरेज में हमने कंसीडर किया था वो भूल जाओ, ये आपका इफेक्टिव एरिया है इस केस में। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, डिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। आसान क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। ये 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं मेनली। 7th क्वेश्चन है सुपरपोजिशन से रिलेटेड। सिंपल बात करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम की कंडीशंस क्या है, कहां पर आप अप्लाई करोगे सुपरपोजिशन थ्योरम। आप पूरे सोम के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम को बार बार पढ़ोगे। यू रीड सुपरपोजिशन थ्योरम इन होल ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम अगेन एंड अगेन, मेनली इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑल्सो। जब आप बीम की एनालिसिस करोगे या फिर ट्रस की एनालिसिस करोगे तब भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हो। कंडीशन क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करने की, दैट इज अवर 7th क्वेश्चन नाउ। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ये है आपके पास एक लीनियर, एक है आपके पास नॉन लीनियर, एक है आपके पास स्मॉल डिफ्लेक्शन और एक है आपके पास लार्ज डिफ्लेक्शन। लार्ज डिफ्लेक्शन, यदि ये हमारे पास 1 है, ये 2, ये 3 एंड ये 4, यदि अब आपको ऑप्शंस दिए जाए ABCD बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 4, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 3 एंड बिटवीन 2 एंड 4, तो आप चूज करो आंसर क्या बनेगा इसका। और वही आंसर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया है। इसका आंसर बनेगा आपका लीनियर एंड स्मॉल डिफ्लेक्शन, दैट इज आवर आंसर सी। वहीं पर ही हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लीनियर का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू बी स्ट्रेन। स्ट्रेस आपका स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसकी कंडीशन ये है। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब बात करते हैं टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड। डिफ्लेक्शन में यदि टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो आपका डिफ्लेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा 8th क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। और 8th क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, डिफ्लेक्शन इफेक्ट, डिफ्लेक्शन इफेक्ट ऑन, सॉरी, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन डिफ्लेक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्लेक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्लेक्शन, ऑन डिफ्लेक्शन। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैं यदि आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन शेयर करूं, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये आपकी एक सिलेंड्रिकल रोड है, ये मान लेते हैं हम स्टील की रोड है, और ये आपकी कॉपर स्लीव्स हैं। हमने देखा है कंपोजिट मटेरियल होते हैं, अंदर स्टील रोड है, बाहर उसके सिलेंड्रिकल कॉपर स्लीव्स हैं जो इसके ऊपर फिट की गई है। अब ये जो है ये फिक्स्ड है, ये हमारी फिक्स है, मतलब दोनों साइड से फिक्स है। यदि जब ये बनाई गई थी उस टाइम इनका टेम्परेचर था T0, T0 टेम्परेचर था, जिस टाइम पर इस पे कोई स्ट्रेस की वैल्यू नहीं थी। अब जो है टेम्परेचर राइज कर दिया गया है,
मतलब डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया गया है, इसका मतलब है टी नॉट से आपका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो मेंबर है वो इंक्रीज करेगा, ये जो मेंबर है वो अपनी लेंथ इंक्रीज करेगा। तो लेंथ इंक्रीज करेगा तो क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये लेंथ इंक्रीज नहीं होने देगा, जिसके कारण से इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। एक फनी फैक्ट, स्ट्रेसेस क्या होता है, स्ट्रेसेस ये वो नहीं है जो भी आपका जो अब घर बैठे बैठे आपको कोविड के कारण हो रहा है, ये वो स्ट्रेस नहीं है, या ये आपका वो स्ट्रेस भी नहीं है जो आपकी गर्लफ्रेंड से आपको मिलते हैं। ये स्ट्रेस है रेजिस्टेंस, स्ट्रेस जो होता है रेजिस्टेंस टू द मोशन या रेजिस्टेंस टू द फोर्स। स्ट्रेस की जो बात करेंगे, स्ट्रेस जैसे यदि डिफाइन करते हैं हम, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इट इज गिवन बाय द रेजिस्टेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल ओवर पर्टिकुलर सेगमेंट। उसी पॉइंट को बोलते हैं स्ट्रेस, जो रेजिस्टेंस देता है, जो आपको रेजिस्टेंस या आपको टेम्परेचर से मिले या फिर आपको डायरेक्टली जैसे लोड के कारण मिलता है उससे मिले, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। यदि इस कंडीशन में बात करें तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस जो है इस सेक्शन के ऊपर आपको स्ट्रेस मिलेगा, और आपको कैसा स्ट्रेस मिलेगा, दैट विल बी अवर कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्यों कंप्रेसिव, आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि ये लेंथ इंक्रीज करेगी, ये लेंथ इंक्रीज करना चाहेगी, लेकिन आपके पास लेंथ इंक्रीज हो नहीं सकती क्योंकि फिक्स्ड है, तो इसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको मिलेगा। तो वही ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करें, हम इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करें जो एग्जामिनर भी करता है, उसमें क्या किया उन्होंने, ये फ्री कर दिया है, ये अब आपको फ्री कैंटिलीवर की तरह यूज कर रहे हैं। अब इसको अब बोला गया आपको टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, तो और आपको गिवन है अल्फा ऑफ कॉपर एंड अल्फा ऑफ स्टील, अल्फा ऑफ कॉपर एंड अल्फा ऑफ स्टील, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो कॉपर का होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। तो आप यहाँ से यही देखोगे, डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। तो उस केस में आपको पता चलेगा डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये थर्मल एक्सपेंशन के कारण कॉपर ज्यादा बढ़ना चाहेगा, कॉपर आपका ज्यादा इंक्रीज करना चाहेगा एज कंपेयर टू स्टील। स्टील को यदि फ्री छोड़ोगे तो वो इतना ही इंक्रीज करना चाहेगा, इतना ही इंक्रीज करना चाहेगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया, क्योंकि ये कंपोजिट सेक्शन है, ये कंपोजिट सेक्शन है, तो इनकी जो डिफ्लेक्शन हो गया आपको कंपोजिट सेक्शन में, जो ऐसा तो नहीं है कि एक सेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा एक कम रह जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्डेड है, ये यहाँ पे बॉन्ड है इनके बीच में। तो बॉन्ड के कारण यदि ये स्मॉल रह गया है तो ये इसको, ये जो कॉपर का सेक्शन है आपको, ये इसको स्टील के सेक्शन को पुल करेगा। मतलब क्या हुआ, कॉपर सेक्शन अप्लाई पुल ऑन स्टील, अप्लाई पुल ऑन स्टील, and similarly and vice versa, steel apply push on copper, push on copper, push on copper, मतलब ये कॉपर को अंदर की तरफ पुश करेगा। तो आपको क्या आइडिया हो रहा है यहाँ से, स्टील, आपको आइडिया हो रहा है स्टील जो होगी आपकी, स्टील विल बी इन टेंशन, स्टील जो होगी आपकी टेंशन में होगी, और कॉपर जो होगी आपकी, कॉपर जो होगी कंप्रेशन में होगी, कॉपर जो होगी कंप्रेशन में होगी। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था जब फिक्स था ये, तो दोनों ही में कंप्रेशन हो रहा था जब टेम्परेचर राइज किया। ये टेम्परेचर राइज की सिचुएशन है, यदि आप टेम्परेचर फॉल की सिचुएशन देखोगे तो अलग होगी। ट्राई करो टेम्परेचर फॉल की सिचुएशन, ये टेम्परेचर राइज में आपको ये मिलेगा। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, वो भी
नट एंड बोल्ट से रिलेटेड है आपका, तो मैं आपको बताता हूं। उसमें पूछा जाता है जनरली नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम में मूवमेंट ऑफ नट। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस बेसिक्स क्वेश्चन है सॉइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। तो आपके ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड, नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड, नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड। वो क्या है, ये आपका एक प्लास्टिक सेक्शन है, मान लिया ये प्लास्टिक बॉडी है आपकी, मतलब कोई प्लास्टिक का आपके पास सेक्शन था जिसमें आपने बोल्ट को इंसर्ट किया, जिसमें आपने ये आपका क्या है प्लास्टिक स्लीव्स भी बोल सकते हैं आप इसको, प्लास्टिक स्लीव जो बाहर का पोर्शन होता है उसको स्लीव बोलते हैं। ये आपके पास था नट, और आपने ये थी इसकी ग्रूव्स, ये आपने इसके अंदर नट डाल रखा है। ये आपने यहाँ पे ये आपने क्या किया है, ये आपने नट को फिट किया है, वहां पे नट को फिट किया है। ये आपने नट को फिट किया, ये पहले तो आपने वोसल डाली है, वोसल बोलते हैं इसे, वेसल बोल लो या वोसल, ये वेसल है। उसके बाद आपने नट जो होता है आपके पास नट फिट किया है, उसमें नट को यूज किया आपने। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है आपका मूवमेंट ऑफ नट क्या होगा। मूवमेंट ऑफ नट क्या होगा जब आप इस नट को रोटेट करोगे, मतलब आप टाइट करोगे जब नट को, कैसे टाइट करोगे, क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये नट अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो ये इसको इस जो स्लीव्स हैं प्लास्टिक की स्लीव्स है उसको कंप्रेस करेगा, प्लास्टिक की स्लीव्स को कंप्रेस करेगा। लेकिन साथ साथ जो आपका बोल्ट है वो उसको बाहर की तरफ पुश करेगा, ये इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। जब जैसे आप नट रोटेट करोगे, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल है काफी, नट रोटेट करोगे ये कंप्रेस होगा और ये बाहर की तरफ इंक्रीज करेगा। तो मूवमेंट ऑफ नट आपकी दी जाएगी कंप्रेशन ऑफ प्लास्टिक सेक्शन और स्लीव बोल लेते हैं हम इसको, कंप्रेशन ऑफ स्लीव प्लस टेंशन इन नट। तो ये था हमारे पास नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम। कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी काफी पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में इतना ही होता है। कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछेंगे आपको 2.5 रोटेशंस दिए हैं, मतलब कि आपको दे दिया जाएगा डायमीटर ऑफ दिस बोल्ट, आपको बोलेंगे 2.5 रोटेशन इसको दिए हैं। अब स्ट्रेस पूछना रहेगा यहाँ से और वैल्यू पूछनी रहेगी, लेकिन ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये कन्वेंशनल का टॉपिक है। तो आपको खाली इतना समझना है और ये आपको पेपर में मिल जाता है। तो काफी आसान क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की, बात करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं जो आईएएस में पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है, 3D इमेज है, जैसे आप क्यूब मान लीजिए, आप अपना रूबिक क्यूब मान लीजिए, आपके पास रूबिक क्यूब होगा, आई होप, उसको मान लीजिए। हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर जो आपको लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा 1, और हमसे पूछा गया है इस स्ट्रेस के कारण डिफ्लेक्ट, यदि इसको हम x डायरेक्शन बोले, इसको बोले y डायरेक्शन एंड दिस इज अवर z डायरेक्शन। तो आपसे पूछा गया है क्योंकि आपका स्ट्रेस z डायरेक्शन में है, नेगेटिव z में है, तो आपसे क्योंकि कंप्रेशन में है तो ये आपका ये जो प्लेन होगा वो टेंशन के अंदर होगा। ये कौन सा प्लेन है आपका, ये है आपके पास z और ये है हमारे पास z और ये है y, तो ये आपके पास ZY प्लेन। आपसे पूछा गया है ZY प्लेन में क्या स्ट्रेस लगाएं, सिग्मा 2 की वैल्यू पूछी गई है।
जब आपका जो स्ट्रेन है सिग्मा 1 के कारण वो, मतलब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ये है आपका, वी हैव आस्क्ड अबाउट व्हाट स्टेबल स्ट्रेस सिग्मा 2, what stable stress sigma 2 should be applied along each of the other two lateral stress, that is sigma 2 here in this direction, y direction, and sigma s in this x direction compressive। ये मैंने दोनों को compressive दिखाया है कि ये पूछा गया कि what value of sigma 2 should be applied so that the direction to which the magnitude due to this sigma 1 will be half in, ये जो मैग्नीट्यूड आएगा डिफ्लेक्शन का इस डायरेक्शन के ऊपर, वो आपका सिग्मा 2 जब लग जाएगा तो वो हाफ ही हो। आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये थोड़ा क्वेश्चन, तो कन्वेंशनल का क्वेश्चन बनता है वैसे ये। आई होप कि आप ये फाइंड आउट करोगे अपना प्रीवियस ईयर पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये ऐसे नहीं होएगा, मुझे कंप्लीटली आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है और आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये था हमारा एवेंजर्स 10 के 10 क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन फॉर फन, मजे के लिए, आपके मजे के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है सिग्मा एस वैल्यू, सिग्मा वाई वैल्यू आपको गिवन है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई वैल्यू। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और म्यू की वैल्यू गिवन है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। ये 3 वैल्यू आपको गिवन है और पूछा गया है स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। तो क्वेश्चन सोल्व करो ये और बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा।